حال ہی میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 70,000 لوگوں کو مار دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی وار کے پیرالل دنیا میں ایک اور وار بھی چل رہی تھی اور اس جنگ میں مرنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی اس جنگ میں مرنے والے، مارنے والے اور یہاں تک کہ یہ جنگ کروانے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ جی ہاں، میں سوڈان کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اب تک 14 ملین لوگ اپنے ہی ملک میں ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کیمپس میں زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہے اور وہاں ہنگر کا لیول اتنا ڈینجرس ہو چکا ہے کہ فیمن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ایٹراسٹیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ میس کلنگ، سیکشول وائلنس اور سٹارویشن کو ایز اے ویپن یوز کیا جا رہا ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن کے سٹیٹمنٹس بالکل کلیئر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں سچویشن جینوسائیڈ کا تھریشولڈ کراس کر چکی ہے۔ 15 اپریل 2023 یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے سوڈان کبھی بھی نہیں بھول پائے گا، کیونکہ اس تاریخ کے بعد سوڈان میں ایک ایسی آگ بھڑکی ہے جو کہ اب تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ سوڈان کی یہ سول وار نہ صرف سوڈان بلکہ پورے ریجن کا سب سے ڈیواسٹیٹنگ کانفلکٹ بن چکا ہے، اور اس تباہی کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے: اقتدار کا لالچ۔ یہاں ایک ہی ملک کی دو فورسز آپس میں پاور حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں، لیکن یہ پاور کی سٹرگل اب ایک ہیومن ٹریجڈی میں بدل چکی ہے۔ ایک ایسا ڈیزاسٹر جہاں لوگوں کے گھر، زندگیاں اور فیوچر سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ امیجن کریں، ملینز آف پیپل، لٹرلی ملینز، اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ بچے، مائیں اور بزرگ سب یہاں سے اپنا سامان لے کے بھاگ رہے ہیں، اور پورا ملک بھوک، ڈیزیزز اور وائلنس کا گڑھ بن چکا ہے۔ اور دنیا اس جنگ کو رکوانے کی بجائے سوڈان کو ایک پراکسی بیٹل فیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک انالیسس اور فیکٹس کی کلیکشن ہی نہیں، بلکہ ایک کلیئرٹی پیدا کرنے کی کوشش ہے، ایک اٹیمپٹ ہے جو کہ اس انفارمیشن کے گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرے گی جو کہ نیوز چینل نے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سوڈان وار کی کوریج بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گی، اور اس کی وجہ ہے کہ اس جنگ میں بہت بڑے بڑے کی پلیئرز انوالو ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہ وار کب، کیسے اور کیوں ہو رہی ہے۔ اگر یہ جنگ ایسے ہی چلتی رہی تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی وار آسمان سے نہیں گرتی، اسپیشلی سوڈان جیسی جگہ پر جہاں پہ ہر کانفلکٹ کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ اگر آپ ان کو زمین سے نکالنے کی کوشش بھی کریں گے تو پوری ہسٹری کی مٹی ہل کے رہ جائے گی۔ یہ سول وار جو کہ 2023 میں پھوٹا، یہ کوئی سڈن ایکسپلوژن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پریشر کوکر کی طرح تھا جہاں ڈیکیڈ سے ہیٹ گیدر ہو رہی تھی۔ سٹارٹ سے ہی مارجنلائزیشن، اتھارٹیرین رول، ایتھنک فریکچرز اور ریسورسز لوٹ۔ سوڈان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ کبھی بھی پوری طرح یونائٹڈ ہو ہی نہیں پائی تھی۔ اگر ہمیں آج کے سوڈان کی انسٹیبلٹی کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں 1956 کے سوڈان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس ٹائم پہ جب برٹش اور ایجپٹ کے کانڈومینیم نے اس کنٹری کو شیپ کیا، کولونیل رول نے سوڈان کو سپلٹ کر دیا، بالکل ایک سرجیکل کٹ کی طرح، اور اس میں بھی نارتھ سوڈان کو فیور دی گئی۔ ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور پولیٹیکل پاور سب کچھ ایک چھوٹے سے ایلیٹ گروپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور اسی انیکویلٹی کی وجہ سے 1955 میں سوڈان میں پہلی سول وار سٹارٹ ہوئی۔ ساؤدرن گروپس جیسے کہ انیانیا ریبیلز نے یہ کہا کہ ہم اٹانومی چاہتے ہیں، اپنی علیحدہ آئیڈینٹی چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم فورسڈ اسلامیفیکیشن نہیں چاہتے۔ لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پاور تھی وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاور شیئر ہو۔ 1972 کے ایڈیس ابابا ایگریمنٹ نے کچھ دیر کے لیے سوڈان میں امن قائم کیا، لیکن وہ امن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے جن کی فاؤنڈیشن ہی ان ایون ہو۔ 1983 میں پریزیڈنٹ امیری نے اسلامک لا امپوز کر دیا، ساؤدرن اٹانومی کو ڈیزولو کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس نے سوڈان کو ہلا کے رکھ دیا۔ 1983 میں سوڈان کی سیکنڈ سول وار شروع ہو گئی۔ جون گرینگ نے سیکولر اور یونائٹڈ سوڈان کے لیے ایک موومنٹ سٹارٹ کی، لیکن ایتھنک فریکچرز نے اس وار کو مزید ڈیڈلی بنا دیا۔ دنکا، نیوئر اور اس جیسے دوسرے سینکڑوں گروپس اس وار کا ڈیفرنٹ چیپٹرز میں انوالو ہو گئے۔ اس جنگ میں تقریباً 2 ملین لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ فیمن، سٹارویشن ٹیکٹکس، میس ڈسپلیسمنٹ اور برنڈ ولیجز، یہ سب وہ ہاررز ہیں جن کی گونجیں آج بھی سوڈان کی کانفلکٹس میں سنائی رہتی۔ And then they burned our houses and killed our women and children, even people. دارفور سوڈان کی ایک ایسی جگہ ہے جسے 2003 میں اسٹیٹ نے بالکل نیگلیکٹ کر دیا تھا، اور یہ نیگلیکٹ اتنا شدید تھا کہ یہاں کے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی۔ یہاں کے رہنے والی لوکل کمیونٹیز نے یہ کہا کہ ہمیں بھی سوڈان کا حصہ سمجھا جائے، لیکن عمر البشیر نے ان پر جنجوید کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسی ملیشیا تھی جس نے گھوڑوں اور ٹرکوں پر بیٹھ کر ان لوگوں پر گولیاں چلائیں اور 21 سینچری کا سب سے ورسٹ جینوسائیڈ کیا۔ تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، پورے کے پورے گاؤں مٹ گئے اور ملینز میں لوگ ڈسپلیس ہوئے۔ عمر البشیر نے
30 साल तक सूडान पर डिक्टेटरशिप की और इस दौरान उसने करप्शन, पॉलिटिकल क्लींजिंग और एथनिक मैनिपुलेशन भी की और इसी वजह से सूडान की इकोनॉमिक क्राइसिस इस कदर बढ़ गए कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं बची। फिर यूएस सैंक्शंस और ऑयल रेवेन्यू लॉस ने इस मुल्क को कोलैप्स के ब्रिंक पे ला खड़ा किया। इसी कोलैप्स के पेश नजर 2018 और 19 में स्टूडेंट्स और लोग अपने घरों से निकले और बशीर की गवर्नमेंट को घर भेज दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदान ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, लेकिन असल में मिलिट्री ने कभी भी पावर को नहीं छोड़ा था। सूडान वॉर सिर्फ आइडेंटिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये जंगे रिसोर्सेज के लिए भी लड़ी जा रही हैं। गोल्ड सूडान का टॉप एक्सपोर्ट और मेन इनकम सोर्स है। इसके अलावा सूडान ऑयल भी बेचता है और वो कंट्री जिनको सूडान ये चीजें एक्सपोर्ट करता है उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस के लिहाज से यहाँ डायरेक्ट मिलिशियाज बनाए हैं और कुछ कंट्रीज इन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि सूडान की ये वॉर भी एक इंटरनल वॉर नहीं है, बल्कि ये एक फुल ब्लोन प्रॉक्सी वॉर है। ये जंग मेनली दो फोर्सेस के दरमियान चल रही है, जिनमें से एक है सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस जिन्हें हम SAF भी कहते हैं। ये सूडान की नेशनल आर्मी है और इसे जनरल बुरहान लीड करते हैं और SAF को सपोर्ट करने वाले मेन कंट्रीज में इजिप्ट आता है क्योंकि इजिप्ट के इनके साथ मिलिट्री टाइज हैं और दूसरा इजिप्ट दरियाए नील में स्टेबिलिटी जाता है। इसके अलावा ईरान SAF को ड्रोन्स प्रोवाइड करता है, यूक्रेन SAF को रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज हैं जिन्हें हम RSF भी कहते हैं। ये उसी जंजीबीद का अपग्रेडेड वर्जन है जिन्हें जनरल हमदी लीड करते हैं, जो कि पहले जंजीबीद के चीफ थे और इन्हें सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में UAE है। UAE RSF को चैड रूट के थ्रू ड्रोन्स और आर्म्स भेजता है। UAE ने इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि UAE यहाँ के गोल्ड का सबसे बड़ा बायर है। इसके अलावा रशिया भी RSF को सपोर्ट करता है क्योंकि वो इन्हीं के थ्रू यहाँ की गोल्ड माइंस का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं। RSF के पास इन्हीं गोल्ड रेवेन्यूज का ओशन है। इसके अलावा इनकी लीबिया और यमन में भी डिप्लॉयमेंट्स हैं और यही चीजें इन्हें SAF के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बना देती। अब उस कोर रीजन की बात करते हैं कि आखिर ये जंग हो क्यों रही। तो 2022 में दोनों फोर्सेस के दरमियान फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक RSF SAF में इंटीग्रेट हो जाएगी और मुल्क में दोबारा सिविलियन रूल आ जाएगा। दोनों साइडों ने उस टाइम पे प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन अंदर से इन दोनों की इंटेंशंस कुछ और थी। जनरल बुरहान ने ये कहा कि 2 साल में RSF को मर्ज हो जाना चाहिए, उसके बाद सिर्फ SAF ही कमांड करेगी। इससे RSF की ऑटोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल हमदी ने यह कहा कि इसके लिए मुझे 10 साल चाहिए और मजीद ये कि मैं अपनी पैरेलल मिलिट्री और इकोनॉमिक एम्पायर नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्ट्रस्ट बढ़ा, एक्यूजिशंस भी बढ़ते गए और इसी दौरान SAF ने RSF को नेशनल सोवरेनिटी के लिए खतरा डिक्लेयर कर दिया और फॉरेन कंट्रीज ने अपने इन्फ्लुएंस के लिए इस मसले को मजीद हवा दी। फिर 15 अप्रैल 2023 का दिन आया। RSF ने खर्तूम, जो कि सूडान का कैपिटल है, उसमें SAF की पोजीशंस पे हमला कर दिए। एयरपोर्ट्स, प्रेसिडेंशियल पैलेस और दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस सब की सब RSF की कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की जद में आ गई। अब एक तरफ ग्राउंड पे RSF के फाइटर्स थे और दूसरी तरफ SAF की एयर स्ट्राइक्स। एक ही दिन में RSF ने खर्तूम को बैटलफील्ड बना दिया। उसके बाद जद्दा टॉक जैसे कई सीज फायर एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन इन एग्रीमेंट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। सूडान अब बहुत तेजी से इस कॉन्फ्लिक्ट से कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। फिर आया इस जंग का फेज 2, जो कि 2023 से 24 तक जारी रहा। वो आग जो खर्तूम से शुरू हुई थी, अब उसने पूरे सूडान को अपनी लपेट में ले लिया था। RSF ने दरफूर में एथनिक किलिंग्स की, पूरे का पूरे गांव जला दिए और यहाँ तक कि फूड सप्लाई के रूट्स को भी कट कर दिया। उन्होंने जजीरा जैसे शहरों में भी यही कुछ किया। इस दौरान ईद सीज फायर भी फेल हो गई। 2023 और 24 के जद्दा टॉक्स भी कोलैप्स कर गए। अगस्त 2024 में जिनेवा टॉक्स हुई, वो भी नाकाम हो गई। फिर आता है इस जंग का फेज 3, जो कि 2024 से अब तक जारी है और इसी फेज में सूडान का ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स हुआ। अब तक वॉर सिर्फ गन से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब हंगर और डिजीजेस भी वेपन्स बन गए थे। 2024 के मिड तक 10 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके थे। कॉलेरा ब्रेकआउट हो चुका था और 83,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। इस दौरान मलेरिया ने भी सर्ज किया। जमजम और एल्फिशर जैसे शहरों में भी ऑफिशियली फैमिन डिक्लेयर कर दिया गया था। जजीरा में लोगों को घरों के अंदर घुस कर मारा जा रहा था। अभी SAF ने खर्तूम में कुछ पार्शल कम बैक किया। अल-अबीद की सीज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन RSF के काउंटर अटैक्स अभी तक जारी हैं। दोनों फोर्सेस के दरमियान पावर की इस जंग में सबसे ज्यादा सफर सिविलियंस कर रहे हैं, जो कि हमेशा से ही करते हैं। 25 मिलियन से ज्यादा लोग भूख का शिकार हैं। 80% हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और गंदा पानी पीने की वजह से कॉलेरा तेजी से बढ़ रहा है।
मेडिसिन की प्राइसेस 20 गुना बढ़ चुकी हैं। रिफ्यूजीज के कारवान को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और इसी दौरान कुछ लोगों की मौत तो सड़कों पर ही हो गई है। सैनिटेशन नाम की कोई चीज ही नहीं बची। यहाँ बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, औरतों की सिक्योरिटी ना होने के बराबर है और बच्चों को इन मिलिशियाज को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। फैमिलीज परमानेंटली सेपरेट हो चुकी हैं। 1.5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स और फैक्ट्री सब के सब तबाह हो चुके हैं। ऑयल एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो चुकी हैं और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है। फैमिन की वजह से यूनाइटेड नेशन ने कुछ एड भेजी है, लेकिन उसका रास्ता भी रोक लिया गया है। कॉन्वॉयज ब्लॉक कर दिए गए हैं और स्टाफ को थ्रेटन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस जंग के कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है मिलिट्री सेटलमेंट। तो दोनों फोर्सेस में से कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि दूसरी से जंग जीत जाए और ना ही इतनी वीक है कि दूसरी से जंग हार जाए। इसी वजह से इन दोनों को ये जंग छोड़कर अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है फॉरेन मीडिएटेड डिप्लोमेसी। अब तक फॉरेन कंट्रीज ने इन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब जरूरी हो चुका है कि इस जंग को रुकवाया जाए। बड़े मीडिएटर्स जैसे कि यूएस, कतर और सऊदीया को इंटरवीन करने की जरूरत है ताकि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे काबू पाया जा सके। सूडान का कॉन्फ्लिक्ट हमें एक सिंपल बात याद दिलाता है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर भी होती है, और जब इंसान खामोश हो जाता है तो फिर जालिम का जुल्म बोलता है। आज के बाद हो सकता है कि सूडान की न्यूज आपको किसी चैनल पे ना मिले, क्योंकि कुछ बड़े मुस्लिम कंट्रीज भी इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं और यही वजह है कि आज वहाँ के लोग बहुत मुश्किल में हैं। उनके लिए हर दिन एक सर्वाइवल का दिन है। वैसे आपके ख्याल से सूडान की सिविल वॉर का जिम्मेदार कौन है और आखिर कौन इसे अब तक स्पॉन्सर कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।